Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. As you know, we are going through online sport program and you have learnt about chemical equilibrium, law of mass action in last lecture. Now we will continue this chapter. I am your teacher Ruxana Rohi. First come to the objectives. Student will be able to state, understand and derive the conditions, the ways, and the expression for the equilibrium constant and its unit. So, first thing we have to learn that is the conditions which is necessary for the equilibrium, the ways from which we can understand or recognize. Number three, the expression of Kc derivation and its unit calculation. So, after this lecture, students will be able to understand or derive the Kc expression and its unit. They will be able to understand the ways and they can explain the conditions of the equilibrium. Now come to the previous knowledge questions. Previously you have learned about the chemical equilibrium, the dynamic chemical equilibrium, reversible, irreversible type of chemical reaction, what is forward reaction, what is reverse reaction, what is law of mass action, how can you derive a law of mass action, what is Kc, what is Kc expression. So according to that whole topics, we can conclude it in different questions to check your previous knowledge. Number one, that what is dynamic equilibrium. Number two, state law of mass action. State mean the statements, the definition of law of mass action. Number three, differentiate reversible and irreversible type of chemical reaction. Okay, there are two types of reaction, reversible and irreversible. Reactants react to convert into products and product again convert into reactants. These type of reactions are known as reversible. While those reactions which are having only one side reaction like reactants react to form products only are irreversible. As you know, our chapter name is chemical equilibrium. So जब हम chemical equilibrium की बात करते हैं, so that's mean we are going to study reversible type of chemical reactions. Okay, next move to conditions for chemical equilibrium. The rate of forward reaction and the rate of reverse reaction would be same at equilibrium in a chemical reaction. जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, वन थिंग मस्ट बी इन योर माइंड कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट होगा, सेम होगा हमारे पास. ओके, देयर आर थ्री मेन कंडीशंस फॉर केमिकल रिएक्शन. नंबर वन, कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज. कंसंट्रेशन जो हमने एक दफ़ा ऐड कर दी है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की, वो चेंज नहीं करनी अगर हमें केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम हमने सस्टेन करवाना है. नंबर टू, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ केप्ट कांस्टेंट. टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा. जो टेम्परेचर हम उस केमिकल रिएक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. And number third point is pressure or volume of the system is kept constant. जितना टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी जो स्टार्टिंग में है, सिमिलरली प्रेशर और वॉल्यूम भी जो हमारे पास स्टार्टिंग में फॉर केमिकल रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. ओके, नेक्स्ट वन इज okay next is the ways to recognize equilibrium. कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दीज आर
Number one, there are 2 points basically. Number one, equilibrium state of a chemical reaction can be determined by determining the concentration of reactants and product at regular interval. जब भी हमने किसी भी रिएक्शन को और उसमें इक्विलिब्रियम को स्टडी करना होता है तो फर्स्ट वी हैव टू गेट द डाटा. हमें एक डाटा रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल हम ऑब्जर्व करते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स यूज़ हो गए, कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास बन चुकी हैं या कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. तो ये जो भी डाटा हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं उस डाटा की बेस पे ग्राफिकल व्यूज़ के थ्रू हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर वो सारा हम एक्सप्लेन करते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द way to recognize the equilibrium. Or there are different methods like physical or chemical methods for the determination or recognition of equilibrium. There are two methods which are going to discuss, that is titration and spectroscopy. Number one, that is titration. Titration is volumetric analysis. It is quantitative chemical analysis to determine the concentration of a sample. Titration से related जितना भी हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है या जो प्रोसीजर्स हैं वो सब आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में मेंशन है और जब इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल्स की तरफ जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली ये पूरे प्रोसीजर्स को लैब्स में फॉलो भी करेंगे कि किस तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं और उस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो डाटा हम ऑब्टेन करते हैं उससे हम क्या कैलकुलेशंस करके एक सैंपल से दूसरे सैंपल की या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो सेकंड वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. मैटर और रेडिएशंस के दरमियान में जो एक इंटरेक्शन है, एक लिंक बनता है, वो सारे का सारा हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हमारे पास विजिबल लाइट हो सकती है, रेडियो वेव, एक्सरे वगैरह होती हैं और उसका जो एक रिजल्ट हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ हम ऑब्जर्व करते हैं. Okay, next one is equilibrium constant Kc and its unit calculation. Kc drive तो आप पहले कर चुके हैं. Now move toward the unit calculation. But for this purpose, you have to learn two main things. Number one, in equilibrium expression, each figure within a square bracket represents a concentration in mole per dm cube. अच्छा, हर कंटेंट को, कंटेंट मीन्स आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट अलॉट कर देते हैं. लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की स्क्वायर ब्रैकेट अलहदा होगी, ऑक्सीजन की स्क्वायर ब्रैकेट अलहदा होगी और वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है दैट शोज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट. अब वो जो कंसंट्रेशन है उसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल एग्जांपल है ए प्लस बी गिव यू सी प्लस डी. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सारे के सारे मोलर कंसंट्रेशंस हैं. मतलब 1 मोल यूज़ हुआ, 2 मोल हमारे पास है, 3 मोल है, वो सब. कैपिटल ए, कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स while capital C and capital D are the products. Okay, in this slide you can see Kc is equal to product square bracket over reactant square bracket. Bracket में product and reactants को in terms of concentration हमने place किया हुआ है. Next step में देखें, Kc is equal to product जो थी वो D और C थी, तो हमने उनको सेपरेट ब्रैकेट्स में मेंशन कर दिया और जो उनकी मोलर रेशियो थी वो उन ब्रैकेट्स की पावर बन के हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है. प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, टॉप पे जो हो गया वो प्रोडक्ट होगा, डिनोमिनेटर में जो चीज़ होगी वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे. ओके, देयर आर 2 एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन, दैट इज HI. Hydrogen in the form of gas and iodine
react together to form 2HI. Step 1 is balance a chemical equation. There are 4 main steps for unit calculation. So we have to follow the first one, that is balance a chemical equation. Normally इस चैप्टर में आपको बैलेंस की हुई इक्वेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसके बाद आपको ये सिखाया जाएगा कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं. तो अगर बैलेंस की हुई हैं तो हम उनको डायरेक्टली जो है वो मेंशन कर लेते हैं, और जो हमारे पास बैलेंस नहीं होती है उनको हम फिर फर्दर बैलेंस करके यूज़ करते हैं. ओके, स्टेप 2 इज़ केसी एक्सप्रेशन. केसी एक्सप्रेशन में आप देखें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, HI2 कंसनट्रेशन की जो ब्रैकेट्स हैं 2, उसमें उसकी मोलर रेशो है डिवाइडेड बाय H2, मल्टीप्लिकेशन है और I2. स्टेप 3, पुट कंसनट्रेशन यूनिट इन ईच स्क्वायर ब्रैकेट. जहाँ जहाँ हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन किए थे वहाँ वहाँ उनके यूनिट्स भी मेंशन कर दें. फर्दर सिंप्लीफाई करें. जो जो कैंसिल आउट होता है डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में से उसको कैंसिल आउट करें. जो लेफ़्ट ओवर हैं यूनिट्स उनको मेंशन कर दें. अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर कुछ भी नहीं है, सो वी कैन राइट Kc इज इक्वल टू नो यूनिट्स. अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ NO2. अगेन वही 4 स्टेप्स हैं जो कि हमने फॉलो करने हैं. स्टेप 1 है बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. स्टेप 2 है Kc एक्सप्रेशन. Kc एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में है, प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे है, डोमिनेटर्स में है. NO2 मोलर रेशो 2 ओवर NO मोलर रेशो 2 एंड O2. पुट कंसंट्रेशन यूनिट. अब जो एक स्क्वायर ब्रैकेट थी उस स्क्वायर ब्रैकेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जगह पे स्टेप 3 में हम ऐड करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट एंड दैट इज मोल पर DM3. अगेन सिंप्लीफाई करें इसको. जो जो कैंसिल आउट हो रहा है और जो लेफ्ट ओवर है उसके बाद उसको मेंशन कर दें. Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर DM3. अब 1 ओवर मोल पर DM3 का मतलब यह है कि हम उसे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जा सकते हैं. सो जो पॉजिटिव यूनिट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. मोल डिनोमिनेटर में जो है वो पॉजिटिव शो हो रहा है, तो जब टॉप पे जाएगा तो -1 हो जाएगा. DM3 -3 के साथ था, मतलब DM3 है पर DM3 है ये, तो -3 था. जब ये डिनोमिनेटर से जाएगा तो ये DM3 हो जाएगा. इन सारे एग्जाम्पल्स को फॉलो और इनके रूल्स को फॉलो करते हुए आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 को देखें. डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. ये प्रैक्टिस के लिए 4 रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं. इन 4 रिएक्शंस के यूनिट्स Kc एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स ओनली फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, एंड लास्ट में हम जो है वो होमवर्क की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज. आप इसे सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन दी हुई है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है और उसके 3 पार्ट हैं A, B, C. एक में आपने मेंशन करना है Kc एक्सप्रेशन, एक में आपने मेंशन करना है यूनिट्स, एक में आपने इसके फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मेंशन करने हैं. सिमिलरली विथ क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी ऐसा ही है जो आप इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का मतलब है Kc ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज. आप जब अपनी बुक में रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में 3-4 जो है वो इक्वेशंस दी गई हैं. उन इक्वेशंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने जो है वो जो भी इक्वेशन है उसका Kc एक्सप्रेशन लिखना है सिर्फ. डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम रिव्यू एक्सरसाइज. रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, वहाँ पे भी A, B, C, D करके बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई होंगी, 3-4. उनको भी आपने Kc एक्सप्रेशन लिखनी है फर्स्ट, देन यू हैव टू कैलकुलेट इट्स यूनिट. ये जितने भी आपको सेल्फ असेसमेंट की इक्वेशंस हैं या क्वेश्चंस की हैं, ये सारी की सारी आपके पास आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लॉ ऑफ मैस एक्शन, यूनिट कैलकुलेशन, Kc एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इनको कोई भी इक्वेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाए तो आप उसके ये तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट
कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।